نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 43 کو سمجھنے کی کوشش کی، جو کہ اپنے موضوع اور اس کے مفہوم کے اعتبار سے ایک اہم آیت، جس میں نشے کی حالت میں نماز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور پھر تیمم کے بارے میں اہم باتیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ تیمم جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے ایک آسانی جو ہے وہ پیدا کی ہمارے دین میں، جو کہ آج بھی اس کی مختلف صورتوں میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کی اہمیت اور افادیت ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے کچھ مختلف موضوعات یا مختلف اینگلز کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ آیت نمبر 43، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو اور تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ میسر ہو، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ پر مسح کر لو، مل لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور آج کا سبق جو کہ آیت نمبر 44 سے شروع ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 44 سے آگے کچھ آیات جو ہیں وہ اہل کتاب اور خصوصاً یہودیوں کی کچھ حرکات و سکنات اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے متعلق کچھ تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ، ان میں سے اکثر باتوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ گزر چکا، اور بعد میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ تذکرہ اس کا طرح کا ملے گا، یہودیوں اور عیسائیوں کا، اہل کتاب کا، خاص کر یہودیوں کا، کہ کس کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور کس کس طرح سے وہ اسلام کے خلاف مطلب مخالفت کرتے تھے، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اسلام سے، دین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کو یہی ان کی یہ خواہش یا کوشش ہوتی کہ کسی طرح سے وہ واپس اپنے پچھلے دین کی طرف، کفر اور شرک کی طرف، یا یہودیت اور عیسائیت کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک یہ بھی رویہ یا طرز عمل رہا کہ وہ
अपने आप में बड़ी डींगे मारते थे, अपने आप को अल्लाह का बड़ा चहेता और अल्लाह का बड़ा पसंदीदा समझते थे या गर्दानते थे। जबकि अल्लाह ताला की नज़र में तो ईमान और नेक अमल जो है वही एक टेस्ट है। वही एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पर कोई किसी को किसी पर बरतरी मिल सकती है। अल्लाह की नज़र में जो तारीफ है इंसान की, वो तो उस बुनियाद पर है। लेकिन वो अपनी तारीफ खुद करते और कहते कि हम तो अल्लाह के चहेते हैं, हमें जहन्नम की आग जो है वो नहीं छुएगी और दूसरी कौमों से हम अफजल है। गोया कि दूसरे इंसान जो है वो इंसान ही नहीं, जबकि हम ही सिर्फ इंसान हैं। इस तरह के बहुत सारी बातें जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखे। और यही मौजू जो है वो अगली आयत में हमें नज़र आएगा। अगरचे उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो पहले गुजर चुके हैं, लेकिन एक दो जगहों पर जहाँ पर हमें लगेगा कि पहले कोई बात नहीं हुई या अहम बात है, तो वहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 44 से अपना आज के सबक का आगाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों की तरफ, ऊतू नसीबन, जिनको दिया गया या जो दिए गए एक हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से, जो जो किताब का कुछ हिस्सा जो है जिनको अता किया गया, क्या आपने उनकी तरफ नहीं देखा या उनकी तरफ नहीं देखते। ये यहाँ पर अहले किताब और ख़ुसूसन यहूदियों के बारे में ये आयात जहाँ नाज़िल होती हैं कि यहूदियों की तरफ इशारा, कि क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया। किताब के एक हिस्से से मुराद तो एक तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो वही, जो मुख्तलिफ किताबों की शक्ल में, सहीफ़ों की शक्ल में रही, उसमें से एक हिस्सा जो है वो इनको भी मिला। या दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि उन्होंने एक हिस्से को, किताब को तो बिल्कुल गुम ही कर दिया, बिल्कुल सिरे से उन्होंने हटा ही दिया मंजर से। जबकि बाकी जो हिस्सा या कुछ बातें अपनी किताब से जिनका वो तज़किरा करते हैं, उसमें भी अपनी तरफ से तखरीफात करते हुए मतलब बातें करते हैं, या कुछ अपनी तरफ से घड़ी घड़ाई बातें जो दूसरों को बताते हैं। तो बहरहाल किसी भी सिनेरियो में यह तज़किरा हो सकता है कि किताब में जब उनको हिस्सा दिया गया तो आप उनकी तरफ क्या नहीं देखते। वो क्या करते हैं, उनका क्या अमल है, तरीका क्या है, वारदात क्या है। यश्तरून ज़लाला, वो गुमराही को खरीदते हैं। वो हिदायत को जो इस किताब में उनको मिली उसकी बजाय, उसको छोड़कर, उसे पीछे करके अपने दुनिया की गुमराही जो है उसको खरीदते हैं, उसको वो चुनते हैं अपने लिए। वो युरीदून, और वो उम्मीद करते हैं, और वो सॉरी युरीद करते हैं, चाहते हैं। उनकी चाहत ये है कि अन सबील, कि तुम सब भी भटक जाओ असल रास्ते से। और तुम्हारे यानी मुसलमानों के बारे में भी वो ये बड़ी शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि तुम भी उस रास्ते से यानी इस्लाम से फिर जाओ और वापस अपने जहालत में, गुमराही में या पिछले दिन में वापस चले जाओ। वल्लाहु आलम, अल्लाह खूब जानने वाला है, बी आदाइकुम, तुम्हारे दुश्मनों को। अब ये जैसा कि तज़किरा हुआ, तकरीब बहुत सारी बातें पहले गुजर चुकी और बाद में भी आएंगी, जिनका हमने अभी तमहीद के तौर पर कुछ पॉइंट जो हैं उनको हमने जहन नशीन करने के लिए या दिहानी के लिए तज़किरा किया। तो जिस जिस तरह से ये मुखालफत करते हैं, जिस जिस तरह से भी ये इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं या मुसलमानों को उनके हौसले पस्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये दर हकीकत दुश्मनी जो करते हैं, इस दुश्मनी को अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे दुश्मनों को, मुसलमानों के दुश्मनों को खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने उनकी दुश्मनों की कुछ बातें जो हैं, उनका कुछ तर्ज अमल जो है वो मुसलमानों को उसका उसके बारे में ख़बर दी इन आयात के ज़रिए से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीगर अहादीस हैं उनके ज़रिए से भी, और कुरान की इन आयात के ज़रिए से भी, कि अल्लाह ताला ने उन दुश्मनों की निशानदही कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला उन दुश्मनों को, तुम्हारे उन दुश्मनों को खूब अच्छी तरह से जानता है। वह कफ़ा बिल्लाही, और देखो जो भी ये तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, इससे दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं, या मायूस होने की, या मतलब कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि तुमने जिस दीन को पकड़ा है
وہ اللہ کا دین ہے، اور وکفا باللہ ولیجن، اور کافی ہے اللہ بطور خوص، بطور دوست، بطور ولی۔ ولی جو ہے اس کی ڈیفینیشن دوست سے بہت اونچی بات ہے، جو ہم عام طور پر ترجمہ ہم دوست کا کرتے ہیں، فرینڈ کا کرتے ہیں۔ تو فرینڈ جو ہے وہ ایک بڑی محدود سی ٹرم ہے، ولی جو ہے وہ ایک بڑا وسیع معنی رکھنے والا ایک لفظ ہے۔ بہرحال اللہ ہی تمہارا ولی جو ہے وہ کافی ہے، وہ کفا باللہ نصیرہ، اور وہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے مددگار۔ اور وہی جب مدد کرے گا، یا جو وہی جب مدد کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ غلبہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا تمہارے لیے اللہ ہی ولی اور مددگار کافی ہے، تو ان دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے۔ اب اس آیت میں، یہ جو آیت نمبر 46 ہے، آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی تین حرکات جو ہیں، یا تین ان کی جو رویے ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ ملے گا۔ اور یہاں پر یہ کون سے تین لوگ ہیں؟ یہ تو طے ہے کہ وہ یہودی ہیں، من الذین ہادو، جو سب یہودی بن گئے۔ اب یہ یہودی بن گئے، ان میں سے ایک تو منافق بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے ویسے تو اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اور اندر سے وہ ابھی تک یہودی ہیں، انہوں نے اسلام دل سے قبول ہی نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر جا کر مختلف طرح کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، جن کا تذکرہ اس آیت میں ملے گا۔ یا اس سے مراد وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو در حقیقت اسلام کے سے پہلے تو وہ جس دین پر تھے، بے شک انہوں نے نام اپنی طرف سے یہودیت یا عیسائیت رکھا، لیکن وہ دین تو اسلام ہی تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جانے کے بعد، اب ان کا دین جو ہے وہ اسلام نہیں رہا، بلکہ اسلام جو ہے وہ دین ہے جب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کر رہے ہیں، بلکہ جو اسی چیز کی ایکسٹینشن ہے، اور اسی کا فائن ٹیون ورژن ہے، اسی کی مطلب فلٹرڈ فارم ہے، کہ اس میں سے جو تخریفات اور جو باطل چیزیں ہیں ان کو ہٹا کر پیوریفائڈ فارم میں جو اب دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں، وہی در حقیقت دین ہے۔ لیکن وہ اپنے دین سے ہٹ کر انہوں نے اپنی مرضی سے یہودیت جو ہے اس کو اپنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہاں پر جو تذکرہ ہوا کہ جو یہودی بن گئے، تو وہ ان لوگوں میں سے وہ جو یہودی بن گئے، یا جو یہودی ہیں، یحرفون، ان کا کیا رویہ ہے، طریقہ ہے، واردات ہے، ہر ان کی حرکتیں کیا ہیں، کہ وہ یحرفون، بدل دیتے ہیں الکلمہ، کلمات کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا کلمات کو وہ بدل دیتے ہیں، اس میں تخریف کر دیتے ہیں، ام مواضعہ، اس کے اصل مقام سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو وہ بدل دیتے ہیں۔ کس طرح سے وہ بدلتے ہیں، کس طرح سے اس میں تبدیلی لاتے ہیں؟ وہ یقولون، وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں سمعنا۔ سب سے تین حرکات کا تذکرہ اس میں ملے گا۔ سب سے پہلی حرکت جو ان کی ہے، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا۔ وہ ظاہری الفاظ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، لیکن در حقیقت اسی وقت یا تو اپنے دل میں، یا سرگوشی کے انداز میں اپنے آپ سے یا دوسرے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، وہ عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ ظاہری طور پر تو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم سمعنا، ہم نے سنا، لیکن در حقیقت اپنے دل سے، اپنے دل کے اندر سرگوشی میں دوسروں کے ساتھ، اپنے جیسے منافق لوگوں کے ساتھ، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا، لیکن ہم ان کی بات مانیں گے نہیں، ہم نے اس کی نافرمانی کی۔ اور اور دوسری حرکت ان کی کیا ہے؟ وسمع، وہ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، تو سن، آپ سنیے۔ یقیناً ہم ادب و احترام کے ساتھ ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن ان کا طریقہ جو ہے وہ یقیناً گمراہ کن ہے، تو وہ کہتے ہیں تو سن۔ غیر، جب کہنے کو الفاظ میں تو وہ کہتے ہیں کہ سن، لیکن در حقیقت غیر مسمع، وہ کہتے ہیں کہ تم نہ سنوائے جاؤ۔
यानी जब या तो ढके छुपे अल्फाज में, सरगोशी के अंदाज में, या अपने दिल में, या उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि आपकी आवाज़ जो है वो सुनी ही ना जाए, या आपकी आवाज़ तो वो आप उसकी आवाज़ को सुन ही ना सको। ये उनका अल्फाज जो है उस तरह से वो तोड़ते मरोड़ते हैं कि कहने को तो कहते हैं कि सुन, मगर कहते हैं कि ना तुम सुनवाए जाओ, यानी आपकी आवाज़ जो है वो सुनाई ना जाए, या आपको हमारी आवाज़ जो है वो सुनाई ना पड़े। इस तरह की वो अपनी तरफ से बातें जो है वो ऐड करते हैं। अब ये बातें जो हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दुश्मनों को खूब जानता है, और उनकी दुश्मनी को अल्लाह ताला ने किस किस तरह से वादे कर दिया, उनमें से तीन बातें इस आयत में तज़किरा हैं। और तीसरी बात जो वो कहते हैं वो राइना, कि हमारी रियायत करिए कीजिए, या हमारी रियायत कर। ये भी मतलब एक्सक्यूज मी जिस तरह से हम कहते हैं, उस तरह के अल्फाज हैं जो अरबी में मारूफ थे उस वक़्त भी। तो कहने को तो वो कहते हैं कि राई ना, हमारी रियायत कीजिए, लेकिन लय्यम भी अलसिनतिहिम, वो अपनी जुबानों को मरोड़ कर देते हैं। यानी राय ना, वो कहते हैं कि राय ना, लेकिन ये इसका पहले सूरह बकरा में कुछ इसके बारे में गुजर चुका, कि कहते को तो राय ना है, लेकिन वो उसको जबान को थोड़ा सा लंबा करके उस लफ्ज को खींच कर राइना कर देते हैं। राइना का मतलब है हमारी बात सुनिए, हमारी रियायत कीजिए, एक्सक्यूज मी। जबकि राइना जो है उसका मतलब है हमारे चरवाहे। तो इस तरह से ये तीन हरकत या तीन उनके करतूतें ऐसी हैं जो नापसंदीदा हैं, जिनकी नापसंदीदगी की वजह से उनका तज़किरा। अब अहले किताब यहूदियों की बहुत सारी बातें जो हैं उनकी जो नापसंदीदा हैं, जो गुमराह कुन हैं, जो उनकी बातें जो हैं वो अल्लाह ताला को नापसंद हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों का तज़किरा बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया कि ये बातें तो ऐसी हैं जो नंबर वन तो मुसलमानों के ऊपर उसको तज़किरा करना एक एक मकसद जो इस कुरान की आयत में। दूसरा, उनकी इन हरकत और सकनात की नापसंदीदगी की वजह से इसका तज़किरा यहाँ पर करना, कि ये तो बातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला हमेशा नापसंद करेगा। कि ये इसलिए हम इसको पॉइंट को ऐड करें, क्योंकि आगे जाकर भी कुछ ऐसी एक दो चीज़ें और हमारी नज़र से आज गुजरेंगी, जो कि जिनके ऊपर हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने मामलात को थोड़ा सा संवारने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो बहरहाल जिन खास बातों को बतौर खास अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी करके उसके ऊपर सख्त वार्निंग दी, उनका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात भी किया। बहर वो इन सारी बातों को या इस तरह के इस अंदाज में वो लय्यम भी अलसिनतिहिम, वो तोड़ मड़ोड़ कर अपनी ज़बानों को घुमा फिरा कर वो इन अल्फाज को अदा करते हैं। जैसा कि वो समय ना वासई ना, कुरान मजीद में है कि अताना तुम कहा करो, तो वो अताना कहने की बजाय उसको मरोड़ कर अपनी ज़बान को आसाइना करके कह दिया, ताकि सुनने वाले को कुछ और समझ लगे, लेकिन दर हकीकत वो कुछ और कहते हैं। इसी तरह से राइना को राइना कर दिया, थोड़ा सा लंबा करके। तो इस तरह से वो ज़बानों को मरोड़ कर अल्फाज को बदलते हैं। वतानन, और इस तरीके से वो तान करते हैं फिर दीन में, और इस तरह से दीन में वो ताना करते हैं, या दीन में वो ताना देते हैं। अब दीन में वो ताना देते हैं कि मतलब वो खुद से या किसी दूसरों से कहते कि अगर तो सही मानों में फिलवाकी वो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो फिलवाकी वो रसूल हैं, तो उन्हें हमारी बातों का पता चल जाएगा, और फिर वो हमारी इन बातों से मतलब केयरफुल भी होंगे। उनको ये पता भी है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और इन कुरान की आयत से ये साबित हो गया कि उनका जो कहना कि अगर तो वो नबी हैं तो उनको इन बातों का इल्म हो जाएगा, तो उन बातों का तो इल्म उनको हो चुका, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत में वही के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसका इन्फॉर्म भी कर दिया। और इस तरह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते। और यकीनन जिसने भी नबी की शान में गुस्ताखी की, वो अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सज़ा का मुस्तहिक है। और इसी की सज़ा का तज़किरा जो है ना, वो आज भी अगली आयत में या आयत के अगले हिस्से में या आगे भी हमें आज के सबक में भी मिलेगा। वलाउ अन्नहुम, और अगर बेशक वो होते, क्या ही अच्छा होता कि वो, अगर बेशक वो होते कालू, कि वो सब कहते समय ना व अताना, कि हमने सुन लिया और हमने इताअत की या हमने मान लिया। वस्मा, और आप सुनिए, वंजुरना, और हमें कुछ देखिए। आप सुनिए और कुछ नजर करम हमारे ऊपर कीजिए। यानी कि वो क्या ही अच्छा होता कि अगर वो मारूफ तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी उनकी गुफ्तगू होती, उनका कलाम होता, तरोड़ने मरोड़ने की बजाय वो
मतलब दिली अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर उनको कोई अल्फाज दोहराने की या मजीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती तो वो उनको कहते कि हमारी बात सुनिए, और क्योंकि हम आपकी बात मानते हैं, और आप सुनिए और हमारे ऊपर नज़र करम कीजिए, ज़रा दोहरा दीजिए, ज़रा मतलब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छे अंदाज में अगर वो काम या बात करते, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 104 में हम पढ़ चुके हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्माऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम राइना मत कहो बल्कि उन्ज़ुरना कह दिया करो, और सुनो। बल्कि ये बात कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही तुम्हें पूरी तरह से अटेंटिव बैठना चाहिए, ताकि तुम्हें इन बार बार दोहराने की या बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और देखो, काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है, जो इस तरह से कुफर करेगा उसके लिए सख्त अजाब जो है वो भी अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। तो बहरहाल आयत की तरफ वापस आते हैं। क्या ही अच्छा होता कि वो कहते कि सुन लीजिए, सुनिए कि हम मानते हैं या हमने मान लिया, और सुनिए और ज़रा नज़र करम कीजिए, दोहरा दीजिए, ज़रा दोबारा से तफसील बता दीजिए। लकान खैरन, तो यकीनन ये बेहतर हुआ, बहुत होता उनके लिए, लाहुम उनके लिए, वह अक़वम और ज़्यादा दुरुस्त होता, ये यकीनन उनके लिए बेहतर और ज़्यादा दुरुस्त होता। यानी दुनिया की दिन में भी उनके लिए बेहतर तरीका यही था कि इस तरह से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते, और फिर आखिरत के एतबार से भी या उनकी नेकी के एतबार से भी ये बेहतर था कि वो अपनी नेकियों में इजाफा कर दे, अपनी इज़्ज़त और तकरीम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें इजाफा करके। वलाकिन लअनहुमुल्लाह, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी हठधर्मी की और उस रवैये से बाज नहीं आए, जिसकी वजह से वलाकिन लानहुमुल्लाहु, लानत कर दी अल्लाह ताला ने उन पर भी, कुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से, उनके इनकार की वजह से, हठधर्मी की वजह से। फला युमिनूना इल्ला कलीला, बस नहीं वो ईमान लाते बहुत मगर बहुत कम। अब इनके ऊपर ये अपनी कुफर में, शिरक में, हठधर्मी में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि उनमें से कम ही हैं, बहुत कम ही हैं जो कि ईमान लाते हैं। और जैसा ही हुआ कि यहूदियों में से तो 10 से भी कम अफराद थे जो मुसलमान हुए। तो अक्सरियत जो है उन्होंने अपनी उस कुफर की रविश को उसी तरह से बरकरार रखा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की जिल्लत के, अल्लाह ताला की तरफ से मलऊन करार दिए गए, वो उनके ऊपर लानत की गई अल्लाह ताला की तरफ से। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, है लोगों जो किताब दिए गए हो, ये भी अहले किताब की तरफ इशारा है, ये लेकिन यहूदियों की तरफ खुसूसन इसमें इशारा है कि ऐ यहूदियों, ऐ लोगों जो किताब दिए गए हो, आमिनु बिमा नज़्ज़लना, कि तुम ईमान लाओ जो हमने नाज़िल की। बेहतर यही है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उस किताब पर ईमान लाओ जो हमने नाज़िल की, यानी कुरान मजीद। पिछली किताब के हामिल लोगों, तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि इस आखिरी किताब कुरान मजीद पर तुम ईमान लाओ, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जो इस बात की तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। यानी तुम्हारे पास तौरात और इंजील वगैरह या पिछली किताबें जो हैं उससे पहले गुजर चुकी, उनकी वो तायीद करती है, उनकी तस्दीक करती है कि वो भी अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करता थी। उनकी असल जो हकीकत है उसको वो इंडोर्स करती है, तखरीफात नहीं बल्कि असल किताबें जो हैं उनको वो सपोर्ट करती है, तस्दीक करती है। मिन कबली, इससे पहले कि तुम ले ईमान ले आओ इस किताब पर, यानी कुरान मजीद पर, जो कि पिछली किताबों की तस्दीक करनी पहले, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए। अब ये कौन से 3 वक्तों का यहाँ पर हमें तज़किरा मिलेगा या इशारा मिलेगा कि अगर तुमने अपने मामलात को दुरुस्त ना किया तो तुम्हें 3 तरह से अल्लाह ताला की तरफ से अजाब या सजा जो है वो मिल सकती है। इससे पहले कि वो तुम्हें वो दिन आ जाए या वो सजा तुम्हारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए, वो कौन सी 3 बातें हैं? अनतमिसा वजूहन, कि हम मसख कर दें तुम्हारे चेहरों को, इससे पहले कि हम तुम्हारे चेहरों को मसख कर दें, उनको बिगाड़ दें। अब चेहरों को मसख करना, ये सजा जो है, इससे मुराद आखिरत की सजा भी हो सकती है। आखिरत में सजा के तौर पर जो चीज़ों को मस्क कर दिया जाएगा जिल्लत और रसवाई की वजह से, और उनके ऊपर के अजाब की वजह से, इसका मतलब ये भी हो सकता है मुराद आखिरत में, या इससे मुराद दुनिया में भी चेहरों का मसक किया जाना हो सकता है सजा के तौर पर। जैसा कि हमें अहादीस में मिलता है, इब्न माजा की एक रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
क़यामत से पहले इंसानों की सूरतें बदलेंगी और वो ज़मीन में धंसेंगे और उन पर पत्थर बरसेंगे। यानी क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें इंसानों के साथ इस तरह के मामलात होंगे, और यकीनन जो सही मानों में मोमिन होंगे उनके लिए ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होगी। इसी तरह से इब्न माजा की एक और रिवायत है, ये हज़रत साद बिन सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत के आखिर में, यानी क़यामत के नज़दीक, ज़मीन में दंसने, सूरतें बिगड़ जाने और पत्थर बरसने के वाक़यात होंगे। तो ये दुनिया में भी इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो खूब इसके ऊपर दस्तरत रखता है कि वो किसी भी वक्त किसी भी तरह के हालात पैदा करके मतलब वो चेहरों को मसख कर दे। इसकी हमने रीसेंट एग्जांपल देखी, ये कोरोना में हमने देखा कि कैसी बड़ी वबा जो है वो फैली, जबकि उसमें ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसी कोई कैफियत नहीं थी, लेकिन कल को कोई एसिड रेन या इस तरह से बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फेनोमेना भी हमारे सामने है जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा कुछ भी मामला जो है वो हो सकता है। लिहाजा उस दिन के आने से पहले, चाहे वो दुनिया में पकड़ का कोई दिन हो, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, या चाहे वो आखिरत में क़यामत का दिन हो, उस दिन के आने से पहले, उस वक्त के आने से पहले तुम्हें चाहिए कि तुम सही मानों में इस किताब पर, कुरान मजीद पर ईमान ले आओ। दूसरा क्या है, वनरुद्दहा अला अदबारिहा, कि हम फेर दें उन्हें उनकी पीठों की तरफ, कि हम उनकी पीठों की तरफ उनके चेहरे जो है वो फेर दें। यानी उनको उनके ऊपर ऐसा जिल्लत अमेज अजाब दे उनको कि उनके चेहरे जो है वो पीछे को मुड़ जाए। और ये भी अजाब की एक कसम या किस्म या सजा की किस्म हो सकती है, जो कि ज़ाहरी तौर पर जो अल्फाज जिनका हमें मानी यहाँ पर लगता है कि हम उनकी चेहरे जो है उनकी पीठों की तरफ फेर दें। अगर किसी का चेहरा जो है उसकी पीठ की तरफ फिर जाए तो यकीनन ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा का एक पेश खैमा होगा, सजा ही होगी। और ये भी एक तकलीफ से हमारा होगा और सजा की एक किस्म होगी। ज़ाहरी अल्फाज जो है वो उसका ये मानी मफहूम भी हो सकता है, और इसका जो दूसरा मफहूम जो है, इन अल्फाज को या इस तरह के अल्फाज को मुहावरतन भी इस्तेमाल किया जाता है। और मुहावरतन अगर इस्तेमाल करें तो उस सूरत में इसका मानी ये होगा कि आज यहूदियों और ईसाइयों को उस वक़्त के दौर में, या आज भी ये यकीनन इम्प्लीमेंट है ये आयत, कि आज जो तुम्हें एक इज्जत और बुलंद मुकाम और मर्तबा और जो दीगर अल्लाह ताला ने फजल व करम तुम्हारे ऊपर किया हुआ है, जिसकी वजह से तुम डिंगे मार रहे हो, तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें तुम्हारी जिल्लत की तरफ वापस फेर दे, तुम्हारी रुसवाई की तरफ वापस फेर दे। जिस तरह से तुम पहले ज़माने में रुसवा होते रहे, उस तरह से तुम्हें जलील और रुसवा कर दो, कि तुम्हारे पिछले दौर की तरफ तुम्हें धकेल दे। जो पिछले दौर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गुजर चुकी, और इनका इब्तदाई दौर जिसको हम अगर अपनी याद दहानी के लिए तज़किरा करें, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन मतलब साथ उस तरह से किस तरह से मामला था, कि किस तरह से वो फ़िरौन के मगलूब थे और ग़ुलाम थे, और उनके ऊपर किस तरह से जुल्म और सितम ढाए जाते थे, और किस तरह से वो मगलूब और पस्त कौम थे उस वक़्त, कि अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें तुम्हारी पस्तियों की तरफ तुम्हें दोबारा धकेल दे, वापस धकेल दे। और ये फिर इस आयत को सच होते हुए भी हमारी तारीख जो है वो हमें बताती है कि ये आयत जो है वो सच भी होगी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही उनको, यहूदियों को जब पहले मदीने से निकाला गया, और मदीने से जब तीसरा कबीला जो है उसको जब निकाला गया, उसका मुहासरा जब किया गया, तो उन्होंने जब घुटने टेक दिए और उनको फिर उन्होंने नेगोशिएशन या डायलॉग किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी कि ठीक है, तुम यहाँ से निकल जाओ, और जो सामान उठाकर जाना चाहते हो उठा लो और निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारे रहने की कोई गुंजाइश नहीं। और उन्होंने अपने घर की शतीर और खिड़कियां और अपने घरों के चूल्हे जो हैं वो भी अपने सरों पर उठाए हुए थे, और उस बस्ती को छोड़कर वो वहां से वो खैबर की तरफ मुंतकिल हुए। और फिर हजरत उमर के दौर में फिर वो खैबर से भी उनको निकाल दिया गया। तो दुनिया की तारीख जो है, हमारी तारीख जो है वो हमें बताती है कि इस तरह से भी उनके ऊपर एक सजा का वक्त जो है वो आ चुका था, और उसके बाद भी वो काफी जलील ख्वार जो है वो हो चुके। तो दूसरी सजा, कि उससे पहले कि तुम्हें अल्लाह ताला जलील ख्वार कर दे या तुम्हारी पीठों की तरफ तुम्हारे मुंह को फेर दे, उससे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम इस किताब पर ईमान ले आओ। और तीसरी बात, और न लानहुम कमा लान्ना, या हम लानत करें उन जैसा जैसा कि लान्ना, हमने लानत की असहाब सब्ती, हफ्ते वाले दिनों पर, असहाब सब्त पर, जिस तरह से हमने असहाब सब्त पर लानत की, इस तरह से हम तुम्हारे ऊपर भी लानत कर दे। और असहाब सब्त का वाकया जो है, पहले
ایک مختصر انداز میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اس کی کافی ساری تفصیل جو ہے وہ سورہ اعراف میں آئے گی، کہ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ مقرر کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کہ جس میں کسی بھی طرح کا دنیاوی کاروبار کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن ہفتے کے دن وہ مچھلیوں والا معاملہ جو ہے کہ مچھلیاں جو ہے وہ چھلانگے مار مار کر باہر آتی ہیں، اور ان کو دیکھ کر وہ ان کی جو نظریں ہیں یا ان کی رال ٹپکتی لالچ کی وجہ سے، اور وہ پھر وہ گڑھے کھود کر مطلب جو جمعے والے دن رات کو گڑھے کھودتے، تاکہ ہفتے والے دن جب پانی اوپر آئے اور مچھلیاں اوپر آئیں تو وہ ان گڑھوں میں پھنس جائیں، اور اتوار والے دن جا کے ان کو اس طرح سے انہوں نے ترتیب کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور ان کو پھر ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار بندر جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یا ہم تمہارے اوپر ایسی لعنت کریں جیسا کہ اصحاب سب کے اوپر لعنت کی، وکان اللہ امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو امپلیمنٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ان تین معاملات میں سے کسی طرح کا معاملہ ہو جائے، تمہاری سزا کا یا تمہاری ذلت کا، تمہاری رسوائی کا، تو اس سے پہلے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر، قرآن مجید پر۔ ہمیں بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ یہودیوں کی، اہل کتاب کی باتیں خواہ مخواہ سے قرآن مجید میں تذکرہ نہیں، یہ ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں، ہم بھی واپس اپنا ایمان جو ہے وہ اس کو تائید تازہ کریں، مضبوط کریں، کوئی نظر ثانی کرتے رہیں، جہاں پر بھی کوئی کمی بیشی ہو تو ہم اس کو ضرور ریویو کرتے رہیں۔ یہ آیات ہمیں ہمارے گریبانوں میں چھانکنے کی بھی بار بار ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، ان یشرک بھی، کہ جس نے بھی شریک کیا اس کے ساتھ کسی کو، جو جس نے بھی شرک کیا، جس نے بھی اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس شرک کو تو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے اوپر کافی دفعہ تذکرہ ہوا کہ یہ پہلا ایک چیک فارم ہے، چیک لسٹ کا سب سے پہلا خانہ جو ہے، جو کہ قیامت کے دن جس کو پر کیا جائے گا، اور جس کے مطابق دو واضح رستوں کا تعین ہوگا۔ ایک پہلا ہے کہ شرک کے پاک رہا وہ، یا شرک کے ساتھ اس نے دنیا کی زندگی گزاری اور اس کا خاتمہ ہوا دنیا کی زندگی میں۔ تو جس نے تو شرک کیا اس کا راستہ وہیں سے ڈائیورٹ کر دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ راستے میں جو بھی مکالمے ہوں گے، جو بھی بات چیت ہوگی، وہ تو مطلب تسلی کے لیے یا مطلب عذر پیش ہوں گے، ایکسکیوزز ہوں گی، لیکن اس کا راستہ تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے شرک سے پاک اپنی زندگی گزاری، لیکن دیگر معاملات میں بھی وہ درست رہا، تو اس کے دوسرے راستے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس میں بھی خم و بیچ ہوں، اس میں بھی پریشانیاں ہوں، اس میں بھی سختیاں ہوں، اس میں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر تو شرک کا اس میں شائبہ بھی نہیں، رائے زائد کے دانے کے برابر بھی اس نے شرک نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دیگر بہت سارے اس کی تفسیر ملتی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ جہنم سے اس کو نکال دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی جہنم سے واپس نہیں نکالا جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ لقمان کے آیت نمبر 13 میں یہ ملتا ہے کہ شرک ایسی چیز ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم جو ہے، ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے شرک کو قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مروی ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ دوزخ میں یقیناً داخل ہوگا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے کہے گا کہ اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتیں تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے ان سب کو دے دیتا؟ تو وہ عرض کرے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس کی نسبت کہیں کم کا تقاضا کیا تھا، کہیں کم یا کہیں آسان چیز کا سوال کیا تھا، اور جب کہ تو صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک کا ہی ارتکاب کیا۔ میں نے تو دنیا کی زندگی میں بڑا آسان تھا تمہارے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ دیکھو شرک سے بچ کے اپنے آپ کو رکھنا، لیکن تم نے شرک ہی کیا، اتنے آسان سی بات کو تم نے بلا کر اپنی منمانی کرتے رہے، تو اب تو دنیا کی دولت بھی تمہارا عذاب جو ہے وہ نہیں کم کر سکتی۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت ہے مسلم اور بخاری میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह का शरीक बनाओ हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। तो शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे शदीद अजाब का गुनाह है, और इसको इसमें किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं है। और यकीनन जब अल्लाह ताला वादा कर रहा है माफ़ करने का, तो अल्लाह ताला का ये भी कौल है कि वो शिर्क को नहीं बख्शेगा। तो हमें इस तरफ बतौर ख़ास तवज्जो रखनी चाहिए कि शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। वो अपने कौल का पक्का है, सच्चा है, अपने कौल को वो साबित करता है। वो यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ, हाँ अलबत्ता वो माफ कर देगा जो उसके अलावा होगा, यानी शिर्क से छोटी कुछ चीजें जो हैं उनको वो माफ कर देगा, लेकिन लिमन यशाउ, जिसको वो चाहेगा। अल्लाह ताला जिस गुनाह को वो चाहेगा उसको वो माफ कर देगा, बख्श देगा, हर गुनाह को नहीं, जिसको वो चाहेगा। और अल्लाह ताला का पूरा कुल्ली इस्तेहकाक है कि वो जिस चीज को चाहे या जिस गुनाह को चाहे वो माफ कर दे, लेकिन अगर वो सजा देना चाहे तो वो यकीनन सजा भी देता है। तो जैसा कि मसनद अहमद और सही मुस्लिम की एक रिवायत है, हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू जब तक मेरी बंदगी करता रहेगा और मुझसे उम्मीद कायम रखेगा तो मैं तुझे माफ करता रहूंगा, ख्वाह तेरे जो भी गुनाह हो। ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर गुनाह लेकर मेरे पास आ जाए और उनमें शिर्क ना हो तो मैं तेरे पास इतनी ही बख्शिश लेकर आऊंगा। तो जो सही मानों में तौबा करेगा, उनकी बख्शिश का, उनकी मगफरत का, उनके गुनाहों को माफ करने का तो अल्लाह ताला ने वादा किया। लेकिन जो तौबा ही नहीं करेगा, उसकी माफी जो है वो भी अल्लाह ताला के पास कुल्ली इस्तेहकाक है कि वो माफ कर दे या उसके ऊपर सजा दे। लेकिन जो तौबा नहीं करता उसको तो यकीनन उसके माइंड में यही होना चाहिए कि वो सजा का मुस्तहिक है। तो लिहाजा जो डटाई के साथ गुनाह करते रहते हैं और वो ये गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें माफ कर देगा, जब तक वो तौबा नहीं करेंगे, जब तक वो उस रास्ते से हटेंगे नहीं, जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, तब तक उनके गुनाह को माफ नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ताला यकीनन जो है जहाँ पर माफ करने का वादा करता है, वहीं पर सजा करने का भी, सजा देने का भी अल्लाह ताला का कौल है। तो लिहाजा वो लोग जो बड़े कहते हैं कि जी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और अल्लाह ताला बख्शने वाला है, यकीनन माफ़ करने वाला बख्शने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला सजा देने वाला भी और सख्त पकड़ करने वाला भी है। हमें दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात में बेहतरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वमा युशरिक बिल्लाहि, और जिस किसी ने भी शिरक किया अल्लाह के साथ, अल्लाह का, फ़कद इफ्तरा इस्मन अजीमा, तो यकीनन उसने एक बहुत बड़ा बुहतान बांधा, बहुत बड़े गुनाह का, यानी अल्लाह ताला के साथ उसने एक बड़ा गुनाह, यह एक बुहतान जो है वो मंसूब किया, यानी एक बड़ी, बहुत ही बड़ा झूठ जो है उसने अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किया। जैसे कि यहूदी और ईसाई कहते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, जबकि अल्लाह ताला जो है वो इन चीज़ों से पाक है बिल्कुल। इसी तरह से मुशरिक जो है वो फरिश्तों के अल्लाह की बेटियां या दीगर चीज़ों को अल्लाह का शरीक जो है वो ठहराते हैं कि वो अल्लाह की मदद करते हैं या अल्लाह के उनके वकील के तौर पर। तो ये सारी बातें जो हैं वो अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करने के मतरादफ है। तो जो भी शिरक करेगा वो दर हकीकत एक बड़ा अजीम झूठ, इसमन अजीम, बड़े गुनाह का जो एक बहुतान है वो बनता है, जिसकी सजा जो है यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से उसको मिलेगी। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कून अनफुसहुम, क्या आप तूने देखा है उन लोगों को जो सब पाकीज़ा कहते हैं अपने आप को। ये आयत, आज के सबक में ये आयत जो है ये अहम, ये मौजू जो है ये अहम हमारे लिए होगा कि क्या तूने देखा है उन लोगों को जो अपने आप को पाकीज़ा समझते हैं, यानी अपने आप को वो बेहतर समझते हैं, अपने आप को वो आला अफजल समझते हैं। ये यहाँ पर भी यहूदियों की तरफ इशारा है, यानी यहूदी दीन के मामले में खुद पसंदी का शिकार है। और उनकी खुद पसंदी किस तरह से है, वो अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के, वो अल्लाह ताला के चहेते हैं, अल्लाह की पसंदीदा कौम है, अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा। और वो खुद को दूसरी कौमों से अफजल कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें अगर अल्लाह ने अजाब दिया भी तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए, वो बस हमें एक लम्हे के लिए अजाब उसकी तरफ देगा, लेकिन फौरन ही वो निकाल कर हमें जन्नत में डाल देगा और जन्नत के मुस्तहिक हैं। और दुनिया में अल्लाह ताला ने फजलो करम किया, हमारे आला और अफजा अफजल होने की निशानी है। तो इस तरह से वो खुद पसंदी का शिकार है, अपनी तरफ से घड़ी घड़ाई बातों के ऊपर वो खुद पसंदी का शिकार है, अपनी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक उसके महबूब होने और उसके फजलो करम के हकदार होने का पैमाना तो ईमान और नेक अमल है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खुद पसंदी को, ना सिर्फ खुद पसंदी को, अपनी तारीफ खुद करने को, यानी जिसको कहते हैं अपने मुंह मियां मिठू बनना, कुछ एक्सक्लूजन के साथ, जो अपनी तारीफ खुद करता है उसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया। और किसी के लिए जो मुबालगा आराई करते हुए, गुलू करते हुए किसी के बारे में भी जो तारीफ तारीफ करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी सख्ती से नापसंद किया और उसको मना फरमा दिया। जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हजरत अबू बकर हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया, तो एक दूसरे आदमी ने उसकी तारीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने भाई की गर्दन काट दी। ऐसा आपने 3 मरतबा फरमाया और फिर कहा, अगर किसी के लिए अपने भाई की तारीफ करना जरूरी हो तो यूं कहे, मैं उसे ऐसा समझता हूँ, मैं उसके बारे में ऐसा गुमान करता हूँ, अगर वाकई उनमें वो खूबियां पाता हो तो वो फिर इस सूरत में, और उसका हिसाब करने वाला तो अल्लाह ताला है। यानी अगर किसी की तारीफ करना मकसूद हो तो उसके बारे में बजाय इसके कि उसकी शान में कसीदे पढ़ने और कलाबे लगाने के और गुलू करने के, वो इतना ये है, वो इतना वो है, उसके बारे में कस्में खा खा कर कहना कि वो तो वाकई इतना परहेजगार है या इतना अच्छा है या उसकी ये खूबी है, उसकी बजाय इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि उसकी बजाय हमें ये कहना चाहिए कि मेरा ख्याल है, मेरा गुमान है, मुझे लगता है कि वो ये अच्छा है, मुझे लगता है कि उसकी ये खूबी बड़ी अच्छी है, मुझे लगता है कि वो इस तरह से नेक और जाहिद और आबद है, मुझे लगता है कि वो उसकी ये क्वालिटी जो है बड़ी अच्छी खूबी है, दूसरों से मुमताज करती है, बजाय इसके कि उसको इस अंदाज में पेश करें कि वो कसम के नज़दीक हो जाए या इतने यकीन के साथ कि वो मतलब एक कसमिया तौर पर या बात जो है वो महसूस होने लग जाए। यानी कि मुंह पर तारीफ करना जो है, उसकी बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं कि जिसके मुंह पर इस तरह से तारीफ की जाए गुलू करते हुए, यानी कि उससे कोई मकसद और मतलब हासिल करना भी हो सकता है, उसकी नज़र में अपना अपने आप को बढ़ाना भी हो सकता है, या दीगर बहुत सारे मामलात भी हो सकते हैं उसके पीछे छुपे हुए। लिहाजा इस तरह से तारीफ करने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी कर दिया। जैसा कि मिकदाद बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, ये मुस्लिम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम तारीफ करने वालों के चेहरे पर खाक डाल दें। और इसकी प्रैक्टिकल हमें मिसाल जो है वो भी उन्हीं हजरत मिकदाद बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक वाक़े से मिलती है, जो सही मुस्लिम में है कि हजरत मिकदाद बिन अम्र ने हाकिम वक्त की उनके मुंह पर तारीफ करने वाले शख्स के चेहरे पर मट्टी फेंक दी। कोई एक शख्स था जो उस वक्त के हुक्मरान के मुंह पर उसकी तारीफ करते, उसकी तारीफ के पुल उसने बांध दिए थे, तो उस पर हजरत मिकदाद बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर मट्टी फेंकी थी। फिर उनसे पूछने पर फरमाया कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशामद करने वालों के मुंह पर इसी तरह से मट्टी फेंकने का हुक्म दिया था। यानी खुद भी किसी की तारीफ इस तरह से ना की जाए, और कोई दूसरा भी जब तारीफ करे इस तरह से गुलू करते हुए, इस तरह से अब बढ़ चढ़ कर बातें करते हुए, तो उसको भी रोकना चाहिए। और उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और ये हदीस जो है वो भी हमें मिलती है कि उसके मुंह पर खाक डाल दी जाए या मट्टी डालकर उसको रोक दिया जाए ऐसे काम करने से। और यकीनन ये जिस कंटेक्स्ट में यहाँ पर तस्करा है, उन लोगों की तारीफ करना जो कि जिनके बारे में ये हो कि जब उनके सामने तारीफ की जाए तो वो किसी फितने में मुब्तला हो सकते हैं। एक हुक्मरान है, उसकी जब तारीफ इस तरह से तारीफ के पुल बांधे जाएं, कलाबे बांधे जाएं, तो वो हो सकता है कि उसके लिए कोई नाजायज़ तरीके से कोई उसके लिए एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दे दे, या उसको मतलब गलत अंदाज से उसके लिए कुछ रिएक्शन हो। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई वाकई ही काबिल तारीफ बंदा है, उसकी कोई काबिल तारीफ खूबी है, तो मारूफ तरीके से विद इन ब्रैकेट रहते हुए उसकी तारीफ करना, उसमें ऐसी कोई ममानत भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे सहाबा कराम की और बहुत सारे लोगों की तारीफ जो है की है, वो लोग जिनसे कोई फितने का डर ना हो, जो वाकई जाहिद और आबिद लोग होते हैं, तकवा वाले लोग होते हैं, वो इस तरह के फितने से अपने आप को बचा कर रखते हैं, वो भांप जाते हैं ऐसी चीज़ों को, छोटी छोटी बीतों का। लेकिन जो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं, जिनके जो ज़्यादा दस्तरस नहीं होती इन मामलात पर, जिनको, वो फिर अक्सर जो है वो फितनों का शिकार हो जाते हैं, खुद पसंदी का वो शिकार हो जाते हैं कि कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो मुझ में खूबी होगी तो वो तारीफ कर रहा है, तो लिहाजा
معروف طریقے سے اس طرح ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ کسی کی تعریف جب کی جائے تو جو حدیث میں ہمیں الفاظ ملے یا حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کوالٹی یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس انداز سے اچھا ہے، اس طرح سے تعریف کی جائے اللہ تعالیٰ اگر تو واقعی اس کے حق میں وہ تعریف جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس کے اوپر احسان کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو اس کی نیکی کا بدلہ جو ہے وہ دینے والا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہودیوں کی خود پسندی کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا تھا کہ ان کی حرکات و سکنات اور ان کی باتوں میں سے ان باتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے ان کو قرآن میں تذکرہ کیا، تاکہ ہم بار بار تلاوت کر کے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ تو یہاں پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خود پسندی کو بھی، ان کی اپنی تعریفوں کے پل باندھنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا تاکہ ہم بھی ان کو پڑھ کر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ تو باہر واپس آتے، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خود پسندی کا شکار ہیں، جو پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ پسند پاکیزہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی، دھاگے کے برابر بھی۔ یعنی اگر انہوں نے کوئی نیک عمل کیے ہیں، اگر انہوں نے کوئی اچھائیاں کی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے ان کو پاک کرتا ہے یا کس طریقے سے ان کو بخشتا ہے، اگر وہ ایمان لے آئیں، اگر وہ صحیح معنوں میں شرک کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہودی اور عیسائی بھی شرک ہی کرتے ہیں انڈائریکٹلی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کو جس بھی طرح سے وہ پاک کر دے، وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں اپنی طرف۔ اور دیکھو ولا یظلمون فتیلا، نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر، کہ جن کو جو لگتا ہے کہ تعریف کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتیلہ کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اور فتیلہ جو ہے یہ کھجور کی گٹلی کا جو کٹ ہوتا ہے یا پیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک ریشہ سا ہوتا ہے یا دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ بھی معمولی بات، محاورتاً یہ کسی معمولی چیز کو تذکرہ کرنے کے لیے، یا معمولی کسی چیز کی معمولی پن جو ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ محاورتاً بھی یوز کیا جاتا ہے یہ لفظ جو ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے اوپر یا ان کے اوپر دھاگے برابر بھی یا فتیلہ برابر، فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انظر، تو آپ دیکھیے، تو دیکھ، کیف یفترون علی اللہ الکذبہ، کس طرح سے وہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی ان کتابوں میں تخریفات کر کے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے، وکفا باللہ وکفا بہ اسم مبینہ، اور کافی ہے اس کا صریح گناہ ہونا، اس کا صریح گناہ ہونا ہی کافی ہے، ان کا یہ گناہ ہونا ہی کافی ہے کہ ان کو سخت سے سخت اللہ تعالیٰ عذاب دے، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے ایسے بہتان باندھے جن کی ان کے پاس کوئی نظیر نہیں تھی، جن کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اپنی طرف سے گھڑ کر کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتان جو ہے وہ منسوب کرتے رہے۔ تو ایسے بہتان ہی کافی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں جو ہمارے سمجھنے کی اور ہماری اصلاح کرنے کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح فہم کے ساتھ، صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح فہم کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی وقت بھی گزر چکا۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی، خاص آسانیاں ہمارے لیے کرے، ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار رزق عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان رزق سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت کمانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ خاص آسانیاں، خاص مدد، خاص رہنمائیاں اور خاص رحمت اور فضل و کرم ہمارے اوپر کرے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ پہلے بیچ میں جنت میں جانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ بھی حسن مطلب بہترین سلوک جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے، صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور
دیگر مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی برزخ کی زندگی کو بھی ان کے لیے آسان کرے، اور آخرت میں بھی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔